Formalin solution is 0.2 ml. It acts as a preservative, and distilled water up to 100 ml is used for dilution. ठीक है, तो इसके 4 कंपोनेंट होते हैं. One is anticoagulant, one is a dye, that is brilliant crescel blue, one is a fixative, that is formalin solution, and one is a diluent, that is distilled water. So what is the procedure for this practical? First of all, you will take Rees-Ecker solution 3 to 5 ml in a watch glass. Then you will clean the tip of the finger with the spirit swab and prick it with sterile lancet. ठीक है, जो आप प्रोटोकॉल दूसरे प्रैक्टिकल्स में यूज करते हैं. ठीक है, आपने क्या करना है, प्रिक करना है नीडल विद द स्पिरिट स्वैब. यू विल क्लीन द tip of the finger. After that, you will prick it with a lancet. Wipe off the first drop of the blood because it contains the tissue fluid. ठीक है, तो प्लेटलेट कम होंगे. अगर हम पहले वाला आप ड्रॉप ले लेते हैं तो फिर उसमें प्लेटलेट will decrease. Then touch the tip of the RBC pipette with upcoming drop of blood at an angle of 45 degree and fill it up to mark 1. Clean the tip of the pipette with the spirit swab. ठीक है, ये वाला जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें आपका क्या है कि after pricking your needle, you are going to fill the RBC pipette up to mark 1. ठीक है, 45 के एंगल के ऊपर रखते हैं. आप थोड़ा सा टिल्ट करके नीचे को रखते हैं तो आपका due to the action of gravity as well as due to capillary action, the blood is going to seep into the capillary tube and you will take the blood up to mark 1. ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, you will suck the fluid. Rees-Ecker solution आप एक वॉच ग्लास में आपने डाला होता है. ठीक है, 3 to 5 ml. Then you will suck this Rees-Ecker solution up to mark 101. ठीक है, ये sucking वाला procedure step है जिसमें आपने 101 mark तक आपने fill करना है Rees-Ecker solution. This will make the dilution 100 times. ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, you will roll, इसको knot लगानी है rubber tubing को. Then the pipette is kept horizontally between the palms and rolled gently for a minute so that blood is going to mix with the diluting fluid. ठीक है, after that you will place it for some time and you will charge the chamber. ठीक है, charging हम कैसे करते हैं वो आपको पहले ही पता है. ये आपकी RBC pipette है. It contains a mouthpiece that is red and the rubber tubing, and then there is a bead inside the tubing. ये वाला जो है, that is a bead. It is red in color and this tubing contains marking 0.5, 1 and 101. ठीक है, जो आपकी WBC pipette है, it contains white mouthpiece, rubber tubing, white bead and marking is 0.1, 1 and 11. ठीक है, उसकी मार्किंग डिफरेंट होती है, उसकी लेंथ का भी साइज डिफरेंट होता है. सो ये आपका वाइवा क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ट्यूब्स. ठीक है, तो आपने क्या करना है, यू विल टेक द ब्लड अप टू मार्क 1. यहाँ तक आपने ब्लड फिल करना है अप टू मार्क 1. आफ्टर दैट यू विल सक द Rees-Ecker solution अप टू द मार्क 101. यहाँ तक सक किया, उसके बाद ये वाली ट्यूबिंग को आपने नॉट देनी है. नॉट देने के बाद अपने पाम्स में रोल करना है so that the blood is going to mix with the diluting fluid. After that you will going to place it for some time and then you will charge the chamber. चार्जिंग के जो स्टेप्स हैं आपकी बुक में लिखे हुए हैं 39 पेज नंबर. डिस्कार्ड द फ्लूइड इन द स्टेम ऑफ द पिपेट एंड चार्ज द चेंबर. अलाउ अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ द डाइल्यूटेड ब्लड टू फॉर्म एट द टिप ऑफ द पिपेट. Bring the tip of the pipette near the edge of the cover slip on central platform in such a way that it will make an angle of 45 degree with it. ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट प्रैक्टिकल में शो भी किया था. Then diluted fluid will seep under the cover slip due to capillary action. Wait for 3 to 5 minutes for the cells to settle down and cover the whole slide with patty dish containing a wet filter paper for 10 minutes.
Count the platelet under high power of microscope 40x and platelet appear as rounded or oval refractile non-nucleated cells. ठीक है, इसमें जो है ना सारा procedure same है like that of TLC as well as RBC count. The difference is that you are going to cover this chamber or the newborn chamber under a petri dish that is containing a wet filter paper. ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपकी जब moist condition होती है तो आपकी platelets are going to be less mobile. ठीक है, so they are going to settle on the slide so that you are going to count them. ठीक है, अगर हम इनको wet filter paper के अंदर उसको डैम कंडीशन में नहीं रखते तो वो मोबाइल रहते हैं एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर काउंट द मोबाइल प्लेटलेट्स ऑन द स्लाइड. ठीक है, तो इसकी मोबिलिटी एक तो फिक्सेटिव सोल्यूशन जो है वो आपकी इसको कम करता है, दैट इज फॉर्मलिन सोल्यूशन, प्रिजर्व करता है प्लेटलेट्स को, और दूसरा ये है कि आप जब इसको मॉइस्ट कंडीशन में रखते हैं अंडर पेट्री डिश फॉर 10 मिनट्स देन द प्लेटलेट्स आर गोइंग टू बी स्टेबल एंड दे आर गोइंग टू बी होल्ड ऑन द पोजिशन ऑन द न्यूबोर्न चेम्बर और द ग्रिड. ठीक है, और आप इसको इजीली काउंट कर सकते हैं. नाउ द स्टेप इज काउंटिंग ऑफ द प्लेटलेट्स. The counting should be done either in the central 25 square or in the small same 5 square of central square as for RBC count, that is marked P. ठीक है, आपको मैं अभी बताती हूँ. यूजिंग द रूल, थॉमस रूल, लीव, लोअर एंड लेफ्ट. ठीक है, इसको 3 दफा हम बात कर चुके हैं तीनों प्रैक्टिकल में, व्हाट इज लीव, लोअर एंड लेफ्ट. उस रूल के जरिए से आपने इसको काउंट करना है. या तो आप सारे स्मॉल बॉक्सेस में काउंट करेंगे या फिर जो आपके आरबीसी वाला काउंटिंग है उसके अंदर आप इसको काउंट करेंगे. ठीक है, आरबीसी के काउंट आप किस में करते हैं, आई विल शो यू. ये वाला जो बॉक्स है न्यूबोर्न चेम्बर, इसमें हम आई विल शो यू. ये वाले जो 4 कॉर्नर स्क्वायर है और 1 सेंट्रल मीडियम साइज स्क्वायर, ये पांचों जो हैं आपके मीडियम साइज स्क्वायर हैं. ठीक है, 9 बिग बॉक्सेस के अंदर आपके 5 और 25 मीडियम साइज स्क्वायर होते हैं. या तो आप इन तमाम 25 में काउंट करते हैं और फिर डाइल्यूशन फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर आप आरबीसी की तरह जैसे आपने आरबीसी काउंट किए थे कि 4 कॉर्नर स्क्वायर एंड 1 सेंट्रल मीडियम साइज स्क्वायर, उसके अंदर आप काउंट करते हैं और फिर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं विद द डाइल्यूशन फैक्टर. इट विल गिव यू एक्चुअल नंबर ऑफ प्लेटलेट्स. ठीक है, यहाँ तक कोई बच्चे किसी को कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क. ठीक है, वी विल मूव फर्दर. मैम जी बेटा. मैम ये आपने कहा कि ये या 25 सारे बॉक्सेस में से काउंट कर सकते हैं या फिर 5 में से. जी, जैसे आपने प्लेट आरबीसी काउंट किए थे ना कि 5 स्मॉल स्क्वायर, 4 कॉर्नर स्मॉल स्क्वायर और 1 सेंट्रल स्मॉल स्क्वायर किया था ना मीडियम साइज स्क्वायर, उसके अंदर काउंट करते हैं. ठीक है, और उसके अंदर कितने बॉक्सेस होते हैं, हर एक के अंदर यू हैव 16 बॉक्सेस, तो 16 into 5 इज 80 स्मॉल स्क्वायर. 80 स्मॉल स्क्वायर के अंदर आप इसको काउंट करते हैं. आप यही वाला मेथड यूज करें, आप वो भूल जाएंगे 25 के अंदर सारों के अंदर काउंट करेंगे, वो आपके लिए मुश्किल भी होगा. सारों के अंदर हम नहीं काउंट कर सकते, ये आपकी बुक में इसलिए लिखा था, इसलिए आई हैव मेंशन्ड. अदरवाइज यू विल काउंट इन द 4 कॉर्नर स्क्वायर एंड 1 सेंट्रल स्मॉल स्क्वायर. ठीक है, मीडियम साइज स्क्वायर. मैम दोनों केसेस में आंसर चेंज नहीं आएगा? नहीं, इसमें ये होगा ना कि आप 16 स्मॉल बॉक्सेस में काउंट करते हैं और उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं विद द डाइल्यूशन फैक्टर. ठीक है, लेकिन उसमें ये है कि आप फिर उसको मल्टीप्लिकेशन वाला जो फैक्टर है ना वो निकल जाएगा उसके साथ. आगे मैं आपको कैलकुलेशन में बताती हूँ. ठीक है, नेक्स्ट जो है बेटा आपकी कैलकुलेशन है 40 पेज नंबर. फर्स्ट इज द डाइल्यूशन फैक्टर. 1 part of the blood is going to dilute with 100 parts of the fluid. ठीक है, हमने कितना लिया था ब्लड स्टेम के अंदर, 1 मार्क तक. ठीक है, और हमने रीसेकर सोल्यूशन लिया था 101 मार्क तक.
ठीक है, तो 100 पार्ट्स आपका डाइल्यूटिंग फ्लूइड है और 1 पार्ट आपका